A bag contains 4 white, 3 black balls, and a ball is drawn at random. Random म्हणजे काय? You put your hand in the bag and you draw one ball without knowing the color, without knowing which ball you are drawing. What is the probability of white ball? तो अब ये टोटल कितने बॉल्स हैं? In how many ways we can draw one ball from the 7 ball? In 7C1, that is in 7 ways. Now, what is the probability that it is a white ball? So I will say, let A be the event that the ball is white. So in how many ways we can draw white ball? 4C1, that is in 4 ways. So what is the probability of drawing a white ball? 4/7. Suppose I ask the next question. What is the probability of drawing a black ball? काय? चालेल. So I will say let, yes, in the same case. I'll say let B be the event of drawing black ball. So in how many ways I can draw black ball from 3 black balls? 3C1, that is 3. So it will be 3/7. As simple as this. Now let us take this next sum. 2 balls are drawn at random from a bag containing 3 white, 4 black ball. What is the probability that both are red balls? अब अगर आपके पास बैग में व्हाइट और ब्लैक बॉल्स है तो क्या आप रेड बॉल ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास रेड बॉल है ही नहीं. तो drawing a red ball is an impossible event and thus the first case is 0. Yes, it is an impossible event. Because you can't draw a red ball. So the probability is 0 in the first case. Second case, both are black balls. So I can draw, in how many ways I can draw 2 balls from 7 balls? 7C2, that is in 21 ways. Now both balls has to be black. It will be 4C2. That is 6. And the probability will be 6/21 or 2/7. Then the next one. Balls are of same color. अब balls are of same color मतलब क्या है? एक तो दोनों के दोनों black balls होने चाहिए, that is 4C2/7C2, so 2/7. या फिर दोनों के दोनों white होने चाहिए, 3C2/7C2, that is 3/21, that is 1/7. I will add them because either both will be black or both will be red, so the total probability is 3/7. एक तो दोनों के दोनों ब्लैक बॉल्स होंगे. ब्लैक बॉल्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग?
4c2 में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4c2 अपॉन 7c2। या फिर दोनों के दोनों व्हाइट बॉल्स होंगे, व्हाइट बॉल कैसे ड्रॉ करेंगे 3c2 में, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3c2 अपॉन 7c2 and you will add them because either this or this fundamental principle of addition, so my answer is 3/7। 2/7 को आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं कर रहे। अब सेम कलर तो हो गया है कि दोनों ब्लैक या फिर दोनों व्हाइट, वो या फिर और देयर इज और इन बिटवीन, सो वी आर एडिंग देम। नाउ द नेक्स्ट वन इज बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक होना चाहिए। In how many ways you can draw 2 balls from 7 balls, 7c2 in 21 ways. In how many ways you can draw 2 different color balls? 3c1 into 4c1, that is 3 into 4, that is 12. So it will be 12/21 or 4/7. Okay, this is one way. Another way is same color balls and different color balls. They are exactly opposite of each other. Actually, they are complement of each other. जो चीज exactly opposite होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Complement. So instead of finding out this in this way, I can say 1 minus same color की probability is equals to different color probability. So 1 minus 3/7, your answer is 4/7. This is how we find out complement. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो बोला है उसका एग्जैक्टली अपोजिट। सेम कलर का एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? नॉट सेम कलर, मतलब क्या? डिफरेंट कलर। तो 1 माइनस सेम कलर की प्रोबेबिलिटी माइनस की तो आपको डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देन द नेक्स्ट वन, बोथ आर व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 3, दोनों के दोनों व्हाइट बॉल होने चाहिए। 7c2, 3c2, it is 3/21, your answer is 1/7. Okay, this is simply how we can solve this sum. Now the next case that we'll take is balls are drawn one after the others. अब ये हम लोगों ने रैंडम ड्राइंग किया है। अभी रैंडम ड्राइंग का मतलब क्या है? आप अगर बैग में हाथ डालते हो और इकट्ठा 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, इसको रैंडम बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब नेक्स्ट केस है ड्रॉइंग वन आफ्टर द अदर, और उसमें 2 चीजें होती है, विथ रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट अस सी, देयर आर 3 white and 4 red balls in a bag. 2 balls are drawn one after the other. What is the probability that first both are of same color, second both are of different colors? अब यहाँ पे फर्स्ट केस है the balls are not replaced. Now what do we mean by this? आप एक के बाद एक 2 बॉल्स निकाल रहे हो और उन्हें रिप्लेस नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक बॉल निकालते हो, उसे आप ऑब्जर्व करते हो और उसे आप साइड में रख देते हो, आप उसे वापस बैग में नहीं डालते हो।
इससे बैग का जो कॉम्बिनेशन है रेड और व्हाइट बॉल्स का और जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो बदलता जाता है। तो हम लोग पहला चीज करेंगे कि मेरे पास जो बैग है उसमें है 3 व्हाइट और 4 रेड बॉल। अब उन्होंने बोला है कि दोनों भी बार सेम कलर के बॉल ड्रॉ होने चाहिए और बॉल जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे। रिप्लेस नहीं होंगे मतलब आप बॉल निकालोगे और उसे बाजू में रख दोगे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मेरे दोनों भी बॉल्स व्हाइट हो सकते हैं या दोनों मेरे बॉल्स रेड हो सकते हैं। तो मैंने एक व्हाइट बॉल पहली बार में निकाला, वो रहेगा 3/7। अब ये एक व्हाइट बॉल निकालने के बाद मेरे पास 2 व्हाइट और 4 रेड बॉल बचते हैं। अब मैं वापस एक रेड व्हाइट बॉल निकालती हूँ 2/6 में and I'll multiply them. I'll get 6/42. This is the probability of drawing a white ball. कैसे? मैंने पहले व्हाइट बॉल निकाला 3/7 में, क्योंकि एक ही व्हाइट बॉल निकालना है 7 बॉल्स में से। अब मेरे पास बचे 2 व्हाइट और 4 रेड बॉल, उनमें से मैंने एक दूसरा व्हाइट बॉल निकाला 2/6 में से। That has become 6/42. Now I will get my answer as 1/7 here. अब रेड बॉल के साथ मैंने पहला रेड बॉल निकाला है 3 व्हाइट और 4 रेड में से। एक रेड बॉल में निकाल रही हूँ 4/7 बेस में। अब मेरे पास 3 व्हाइट और 3 रेड बॉल बचते हैं, मुझे वापस रेड बॉल निकालना है 3/6 में। तो ये हो जाएगा 12/42 और 2/7। Now I want that both the balls should be of same color, so I will add these two cases. I will get 3/7. This both the balls are of same color. फिर उन्होंने बोला है both should be of different color. अब सेम कलर का उल्टा क्या हो गया? 1 minus 3/7. 4/7 is different color. I can also solve this. अगर दोनों डिफरेंट कलर हो तो पहला अगर मैंने व्हाइट निकाला है तो दूसरा मैं रेड निकालूंगी। तो पहला व्हाइट निकलेगा 3/7 में और अब आपके पास है 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल, 4 रेड बॉल, और अब मैं एक रेड बॉल निकालूंगी 4/6 में। ये हो गया 12/42। और अदरवाइज आई मे हैव अ रेड एंड अ व्हाइट बॉल। तो रेड बॉल कैसे निकालू मैं? 4/7 में। तो अब मेरे पास कितने बॉल्स रह गए? 3 व्हाइट और 3 रेड। अब मैं व्हाइट बॉल निकालूंगी 3/6 में। नाउ दिस इज 12/42. दिस इज 24/42. It is 4/7. See, same. अब यहाँ पे पहले जब हम लोग रैंडमली ड्रॉ करते थे बॉल्स, तब ये रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि हम लोग उसे रैंडमली इकट्ठा 2 या 3 बॉल ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोग एक के बाद एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर मैंने पहला वाला बॉल रिप्लेस कर दिया तो बैग में उतने ही बॉल्स रहेंगे जितने पहले थे, और अगर मैंने रिप्लेस नहीं किया तो बैग में जो बॉल्स है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस नहीं कर रही हूँ, तो मैंने अगर पहला व्हाइट बॉल निकाला तो मेरे पास अभी 2 व्हाइट और 4 रेड है, फिर मुझे व्हाइट बॉल निकालना है, इनकी प्रोबेबिलिटी बदलती जाती है। सिमिलरली इन केस ऑफ डिफरेंट कलर बॉल्स, मैं अगर पहले व्हाइट निकालूं तो मेरे पास अभी 2 व्हाइट और 4 रेड बचते हैं, और अब मैं उसमें से एक रेड निकालती हूँ तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी है। और अगर मैंने पहले रेड निकाला तो 4/7 हो जाएगा। फिर मेरे पास 3 व्हाइट 3 रेड होंगे, उसमें से व्हाइट बॉल निकालना है 3/6 में, तो वो ये प्रोबेबिलिटी होगी 24/42. 4/7 is my probability. This is when the replacement is not done. If they do a replacement, मतलब 3 व्हाइट और 4 रेड बॉल है और उन्होंने बोला है कि यू हैव टू ड्रॉ सेम कलर बॉल्स, तो मुझे पहले भी व्हाइट बॉल ही ड्रॉ करना है और सेकेंड ड्रॉ में भी व्हाइट ही ड्रॉ करना है, और ये विथ रिप्लेसमेंट है। दिस इज विथ रिप्लेसमेंट। तो मैं पहला व्हाइट बॉल कैसे ड्रॉ करूंगी? 3/7 में। फिर मैं दूसरा व्हाइट बॉल कैसे ड्रॉ करूंगी? वापस 3/7, 9/49। क्यों?
क्योंकि ये विथ रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे बॉल वापस बैग में डाला जाता है तो नंबर ऑफ बॉल्स और कॉम्बिनेशन सब रह जाता है सेम। अगर मैंने रेड बॉल निकाले तो मैं 4/7 में निकालूंगी और ये भी 4/7 में होगा। That will be 16/49. If you will add, you will get 25/49. Then the second case is मैं डिफरेंट कलर बॉल निकाल रही हूँ, तो मैं पहले व्हाइट फिर रेड बॉल निकालूंगी। पहले व्हाइट 3/7 फिर रेड बॉल 4/7। यहाँ पे वो 7 बॉल सेम रहते हैं क्योंकि बॉल हम लोग वापस बैग में डाल देते हैं, ना नंबर ऑफ बॉल्स बदलते हैं ना कॉम्बिनेशन बदलता है। ये 12/49 हो गया। देन रेड एंड व्हाइट, ये वापस 12/49 हो गया। ये हो गया 24/49। दिस इज योर आंसर। 16/49, 24/49. This is when the with replacement we are talking. Sorry, not 16, 25/49 and 24/49. ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी है, अगर आप ट्राई करके देखो। तो ये विथ रिप्लेसमेंट है, पहले वाला विदाउट रिप्लेसमेंट था। This is how it will change when we are talking about balls drawn one after the other. रैंडमली ड्रॉ करना मतलब इकट्ठा दो ड्रॉ करना होता है। वन आफ्टर द अदर मतलब पहला एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, आप कलर देख रहे हैं, फिर आपका डिसीजन है आप उसे रिप्लेस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी अलग होगी, नहीं रिप्लेस कर रहे हो तो आपके प्रोबेबिलिटी अलग होगी। प्लीज डू दिस।